بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم نیوکلیر ری ایکٹر کو پڑھیں گے. تو نیوکلیر ری ایکٹر ایک ایسا کنٹرول نیوکلیر ری ایکشن ہوتا ہے فیژن کا، جس سے ہم باقاعدہ انرجی حاصل کرتے ہیں اور وہاں سے ہم اس انرجی کو ہم مختلف طریقوں سے یوٹیلائز کر کے الیکٹرسٹی پروڈیوس کرتے ہیں اور اس پر ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں جو بعد میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے. لیکن سب سے پہلے ہم نیوکلیر ری ایکٹر کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ a nuclear reactor is a device that is designed to maintain a self-sustaining fission reaction in a controlled manner. تو ہم نے تو فیژن ری ایکشن کو باقاعدہ پڑھا اور پھر ہم نے فیژن چین ری ایکشن کو پڑھا. وہاں پر ہم نے کریٹیکل ماس کی بات کی، سب کریٹیکل ماس کی، سپر کریٹیکل ماس کی بات کی. تو اب ایک ایسا ڈیوائس جس میں سیلف سسٹیننگ فیژن ری ایکشن جو ہوتا ہے وہ کنٹرولڈ مینر میں ہو تو اسے ہم نیوکلیر ری ایکٹر کہتے ہیں. اگر یہ ان کنٹرول ہوا تو پھر اس سے ہم یہ ٹاپک نہیں ہوگا، پھر یہ ہم ایٹامک بم کے زمرے میں یہ بات آئے. تو تھوڑا سا ڈائیگرام کو ہم دیکھتے ہیں. ڈائیگرام کو دیکھ لیں. یہ ہمارے پاس ٹوٹل ری ایکٹر کا کور ہے جسے ہم ریڈیشن شیلڈنگ کے ذریعے ہم نے اسے بند کیا ہوا ہے. اس طرح یہ سبز رنگ جو نظر آ رہا ہے یہ شیلڈنگ ہے. یہ شیلڈنگ جو ہوتا ہے یہ اصل میں ہم لیڈ اور کنکریٹ راڈ سے کنکریٹ سے بناتے ہیں اور لیڈ جو ہوتا ہے اس کی تھکنس کئی فیٹ تک ہوتی ہے. دوسرا اس کا یہ جو علاقہ ہے یہ والا، تو یہ ایک پریشر ویسل کے حساب سے ہوتا ہے اور اس پریشر ویسل کی اٹیچمنٹ 3 جگہ پر ہوتی ہے. 2 جگہ سے ادھر اور ادھر سے یہ ہیٹ ایکسچینجر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. اس کو ہم ہیٹ ایکسچینجر کہتے ہیں جس میں 2 موٹر لگے ہوتے ہیں اور مختلف ڈکٹس کے ذریعے یہ اٹیچ ہوتا ہے اس پریشر ویسل کے ساتھ. تیسرا جو اس کا اٹیچمنٹ ہے یہ گریفائٹ یہ کنٹرول راڈ سے ہوتا ہے، جو مختلف قسم کے کنٹرول راڈ ہوتے ہیں جو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. تو پروسیس اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جو تھرمل نیوٹران ہیں اس کو ان کر کے ہم ری ایکشن شروع کرتے ہیں. ری ایکشن شروع ہونے کے بعد جس طرح کہ ہم نے ری ایکشن پڑھا تھا تو اس میں نیوٹران پروڈیوس ہوتے ہیں اور اس نیوٹران کو ہم گریفائٹ ماڈریٹرز اور ہیوی واٹر کے ذریعے ہم اسے کنٹرول کرتے ہیں، اس کے انرجی کو کم از کم کرتے ہیں. جو نیوٹران کی وہ انرجی ہم لاتے ہیں جو اس ری ایکشن کے لیے موزوں ہوں اور وہ ری ایکشن شروع کرے. تو یہاں پر اس انارمس اماؤنٹ آف ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے. وہی ہیٹ جو ہے وہ اس ہیوی واٹر کے ذریعے یہ سرکولیٹ ہوتی ہے. یہاں پر سٹیم آتا ہے کیونکہ جو چیز گرم ہوتی ہے تو اوپر کی طرف جاتی ہے، تو ہاٹ گیس جو ہوتا ہے وہ سٹیم ادھر آتا ہے اور ادھر پر ٹربائن لگے ہوتے ہیں، وہ ٹربائن اس کے ذریعے چلتے ہیں. اور یہ سسٹم جو ہے یہ کلوز سسٹم ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہے. وہ ہیٹ کو مطلب اس گیس کو گھما کر اس کو ٹھنڈا کرتا ہے اور پھر دوبارہ وہ کنڈینس ہونے کے بعد گیس سرکولیشن پوائنٹ پر آتا ہے اور دوبارہ اس سسٹم میں آتا ہے. تو یہ ایک لمبا چوڑا قصہ یہاں شروع ہوتا ہے. باقاعدہ ہم ایک ایک کر کے اب پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے نیوکلیر ری ایکٹر کا جو جز ہے اسے ہم کور کہتے ہیں. یہ کور جو ہوتا ہے یہ یورینیم 235 کے راڈز ہوتے ہیں جو کہ ڈائیمیٹر میں 1 سینٹی میٹر کے برابر ہوتے ہیں اور یہ یورینیم جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ اپ ٹو 3% انرچڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو جز ہے اسے ہم ماڈریٹر کہتے ہیں. یہ پیدا شدہ نئے نیوٹران کو سلو ڈاؤن کرتا ہے. جو نیوٹران پیدا ہوتے ہیں وہ کئی میگا واٹ میگا الیکٹران وولٹ انرجی رکھتے ہیں. جو فریش نیوٹران ہوتے ہیں اسے ہم فاسٹ نیوٹران کہتے ہیں. لیکن پھر ماڈریٹر کے ذریعے ہم اسے آہستہ اس کی سپیڈ کو کم کر کے اسے 0.025 الیکٹران وولٹ بہت کم انرجی پر لے آتے ہیں جو کہ ری ایکشن کے لیے یورینیم 235 میں موزوں ہوتا ہے. یہ ماڈریٹر جو ہے یہ لائٹ ہو ناٹ ایبزرو ٹو نیوٹران، یعنی یہ نیوٹران کو ایبزرو نہیں کرتا. اگر ہم اس کو بہت بڑا بنائیں گے تو یہ نیوٹران کو پھر ایبزرو کرے گا اور ہم ایبزرو نہیں ہونا چاہتے
इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को, क्योंकि अगर ये एब्जॉर्ब हो गए तो फिर न्यूक्लियर रिएक्शन कहां से चलेगा। तो ऐसे मॉडरेटर हम लाएंगे जो ग्रेफाइट और हेवी वाटर के वो सिर्फ उसकी न्यूट्रॉन को थर्मल रेंज में ले आए। इसके बाद जो कंट्रोल रॉड्स होते हैं, ये जो हमें आउटपुट पावर जो इस न्यूक्लियर रिएक्टर की होती है, इसको हम कंट्रोल करते हैं और इसको कांस्टेंट रखना चाहते हैं। तो आउटपुट पावर को कांस्टेंट रखने के लिए हम इस तरह करते हैं कि ये कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि बोरान और कैडमियम या हैडमियम से बने होते हैं। और जो रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन पैदा होते हैं, 1 न्यूट्रॉन पर ईच फिजन, तो उसके लिए यूरेनियम, और ये न इससे कम होने चाहिए न इससे ज्यादा होने चाहिए, यानी ये एक क्रिटिकल तादाद होती है, क्रिटिकल मास होती है यूरेनियम की, जो इस मामले को बाकायदा चलाता है। अगर हम इस क्रिटिकल से कम हो गए तो फिर ये आउटपुट कांस्टेंट नहीं रहेगा, और एक अगर इससे ज्यादा हो गए तो फिर भी ये खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। इसके बाद कूलेंट और हीट एक्सचेंजर होता है जो एक अटैच सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो हमें पता है कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ईच फिजन ऑफ यूरेनियम 235 प्रोड्यूस होता है। तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो इस वजह से जो रिएक्शन शुरू होता है तो हजारों लाखों यूरेनियम के एटम जो होते हैं वो एनर्जी पैदा करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होता है। तो वो जब हीट प्रोड्यूस होती है तो फिर उसको कंट्रोल करना और इसको वापस उस हेवी वाटर को कंडेंस करके वापस लाने का काम जो है ये है कूलेंट और हीट एक्सचेंजर का काम होता है। ये रिएक्टर से जो रॉड्स और मॉडरेटर्स में और ये कोर ऑफ द इस बोतल की ये फ्यूल वेसल जो है, प्रेशर वेसल, इससे जो हीट है उसको वो ले जाता है। अगर हम इसे ना ले जाएं तो फिर क्या होगा, ये रॉड्स और मॉडरेटर जो है और ये कोर जो है ये मेल्ट हो जाएगा और ये एटॉमिक बम की सूरत इख्तियार कर लेगा। तो इसको हम बाहर में निकालते हैं और इसके जरिए हम टरबाइन चलाते हैं और टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और वापस उस स्टीम को हम कंडेंस करके बैक इनटू द हीट एक्सचेंजर लाते हैं, वहां पर वापस लाते हैं। इसके बाद जो इतने खतरनाक काम के लिए शील्डिंग की भी जरूरत होती है, मतलब ये पूरा सारा काम जो है ये शील्ड्स में बना अंदर होता है, क्योंकि अगर हम इसको कंट्रोल न करें तो फिर ये तो बहुत खतरनाक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। ये न्यूट्रॉन जो है और ये फिजन फ्रेगमेंट्स जो पैदा होते हैं, जो बेरियम और क्रिप्टॉन और इससे आगे और चीजें बनती हैं, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हार्मफुल रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं जो इंसानों के लिए, लाइफ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए इंतहाई खतरनाक होते हैं। तो हम कंक्रीट वॉल्स जो होते हैं वो लगाते हैं और इसके साथ साथ हम लेड के फ्यू फीट थिकनेस, मतलब लेड इतनी बड़ी बड़ी लेड्स की ब्लॉक्स बनाई जाती हैं और इर्द गिर्द कर रखे जाते हैं ताकि वो इसकी जो खतरनाक रेडिएशन प्रोड्यूस हो वो उसको कंट्रोल कर सकें। अच्छा जी, तो ये जो शील्डिंग के बाद हम पढ़ते हैं जो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। तो उमूमन थर्मल रिएक्टर यूज होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन थर्मल रेंज में होता है और इसमें हम वाटर को बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं खुसूसी प्रेशर के जरिए। जो हमारे पास प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, ये थर्मल रिएक्टर असल में प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के जरिए हम चलाते हैं, ये एक मखसूस नाम है इसके लिए, और इस जरिए से हम वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो रखते हैं। दूसरा जो रिएक्टर है वो जबरदस्त किस्म का है जिसे हम पास रिएक्टर कहते हैं। पास रिएक्टर में होता है जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, पास न्यूट्रॉन, तो वो हम यूरेनियम 238 जो नेचुरल यूरेनियम मौजूद है नेचर में 99% होता है, उस पर हम न्यूट्रॉन को जब छोड़ते हैं तो वो हमें यूरेनियम 239 और उसके बाद बीटा दे के हमें नेप्टूनियम देता है और वो हमें बीटा दे के प्लूटोनियम देता है। रिएक्शन इस तरह लगा हुआ है। बीटा हमें किस तरह मिलता है, जिस तरह हम ये देखते हैं ना कि ये एक प्रोटॉन बन गया और दूसरा बीटा माइनस और एंटी न्यूट्रिनो। तो मतलब जो यहाँ पर
एटॉमिक नंबर है वो बढ़ जाता है, 93 से 94 बन गया। और दूसरा जो हमारे पास बीटा भी निकल आता है, और ये प्लूटोनियम जो है असल में ये हमारे पास फिजन के लिए एक अनदर फ्यूल है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट रिएक्टर्स में। तो ये हमारे पास एक सिंबल के तौर पर हमने लगाया हुआ है। ये 23.5 मिनट्स के बाद ये हमारे पास जो नेपच्यूनियम है उससे यूरेनियम 239 से नेपच्यूनियम को ये 23.5 मिनट्स में तब्दील हो जाता है, और इसके बाद 2.4 डेज में ये प्लूटोनियम को चला जाता है। रिएक्शन को हम इस तरह लिखते हैं कि जब यूरेनियम को यूरेनियम 238 को हम पास न्यूट्रॉन से मारते हैं तो उससे बीटा प्रोड्यूस होता है, वो प्लूटोनियम को चला जाता है 239, और ये एक फिजन फ्यूल है। इसको हम पास्ट रिएक्टर में इस्तेमाल करते हैं। ये इसमें मॉडरेटर की जरूरत नहीं होती, जो इतना बड़ा किस्सा है इधर ना, तो इसमें इन मॉडरेटर्स की जरूरत नहीं होती। और द कोर ऑफ द पास्ट रिएक्टर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ प्लूटोनियम एंड यूरेनियम डाइऑक्साइड सराउंडेड बाय यूरेनियम 238। जो ब्लैंकेट होता है, ये प्रेशर वेसल का जो ब्लैंकेट है, ये असल में इसके अंदर एक अनदर कोर होता है जो यूरेनियम 238 का होता है, और उसमें उसके दरमियान में प्लूटोनियम और यूरेनियम डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। तो जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और वो एस्केप करते हैं रिएक्शन से, तो आगे से वो प्लूटोनियम प्रोड्यूस कर लेते हैं, और ये नेचुरल यूरेनियम के जरिए से बहुत आसानी के साथ नेचुरल फ्यूल से आप रिएक्शन को मेंटेन कर सकते हैं।